Till today, no action was taken, and the MP representing Wayanad did not even raise this issue till today. Speaker sir, I also want to ask you a very, very important issue, Speaker sir. प्लीज माननीय सदस्य कंक्लूड करो। Speaker sir, I just want to take. आपका को प्रश्न तो Speaker पूछ sir, लिया। I have last question. हाँ, स्पीकर सर, इन 2021 इसके पीछे का कारण मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी। 2021 में केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में केरला के फॉरेस्ट मिनिस्टर के राजू जी ने ये एडमिट किए कि हम वहां से एनक्रोचमेंट को, इलीगल एनक्रोचमेंट को इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से हमें प्रेशर है। To the Honorable Home Minister and the concerned authorities on a very sensitive matter that concerns not just Kerala but other southern states as well. Speaker sir, the last 5 years, Kerala has repeatedly witnessed landslides which have taken the lives of hundreds of innocent people. In July 2022, Ministry of Earth Sciences told the Lok Sabha that Kerala witnesses the maximum amount of landslides in the country. That up to 60% of the landslides that have taken place in the country the last 5 years, most are happening in Kerala. I want to know, what is the central government and what is the state government doing as a long-term measure to address this issue? In just the last 5 years, more than 350 deaths have taken place in Kerala, just around the area of Wayanad and other regions where this has happened. Even this very year, Speaker sir, in January, IIT Delhi conducted a survey and they said that this district of Wayanad falls under the high to very high risk category. And in 2013 and 2011, 2 panel reports conducted a detailed assessment, and thereafter they made recommendations on what the state government has to do. But no illegal encroachments were removed. No action was taken to remove the construction activities taking place, reduce the mining that is taking place in these areas. Speaker sir, I also want to ask, this is a very important issue. In 2020, the Kerala State Disaster Management Authority said, Speaker sir, in 2020, Kerala State Disaster Management Authority advised relocating 4,000 families from landslide prone areas in Wayanad. Till today, no action was taken, and the MP representing Wayanad did not even raise this issue till today. Speaker sir, I also want to ask you a very, very important issue, Speaker sir. प्लीज माननीय सदस्य कंक्लूड करो। Speaker sir, I just want to take. आपका को प्रश्न तो Speaker पूछ sir, लिया। I have last question. हाँ, Speaker sir, in 2021 इसके पीछे का कारण मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी। 2021 में केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में केरला के फॉरेस्ट मिनिस्टर के राजू जी ने ये एडमिट किए कि हम वहां से एनक्रोचमेंट को, इलीगल एनक्रोचमेंट को इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से हमें प्रेशर है। ओके, Kerala's forest minister in the assembly admits that we are unable to remove illegal encroachment because we have pressure from various religious organizations. अध्यक्ष जी, मेरा लास्ट में आपके क्वेश्चन। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के एक एमपी, प्लीज माने, प्लीज कांग्रेस के एमपी पीटी थॉमस जी ने इसी इश्यू को इससे पहले उठाया था और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? दूसरी बार पीटी थॉमस जी को टिकट ही नहीं दिया, टिकट ही नहीं दिया। और आज सिर्फ वायनाड और वायनाड के आसपास के वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से ये एनक्रोचमेंट को ये लोग नहीं हटा रहे हैं। ओके सर,
थे और उन्हीं के पार्टी के होने के वजह से भी इस इश्यू को उठाया, उनको पार्टी से निकाल दिए ये लोग। इन लोग उनको टिकट भी नहीं दिए और आज केंद्र सरकार के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। मैं आज इटी मोहम्मद बशीर, प्लीज आप बोलिए। इटी मोहम्मद बशीर, इटी मोहम्मद बशीर, इटी मोहम्मद बशीर, इटी मोहम्मद बशीर। फिर आप कहेंगे कि मंत्री जी ने ये कहा ठीक नहीं रहेगा। अगर ऐसा जवाब सुनना चाहते हैं मंत्री जी वैसा जवाब देने को भी तैयार हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँ। दादा मुझे बोलने के कहा है। ओ दादा स्वागत बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने उनको हिंदी में बोलने के लिए कहा दादा, प्लीज प्लीज, और कुछ नहीं कहा है। प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, कल भी और आज भी मेरे साथी नित्यानंद राय जी ने गृह विभाग की ओर से एक अधिकृत लिखित स्थिति के बारे में ब्यौरा इस सदन के पटल पर रखा है, परंतु आज डिस्कशन में कुछ मुद्दे खड़े हुए हैं। उसका मेरे पास जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को साझा करने के लिए मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं एक दुखद आपदा में जिन जिन लोगों ने अपने स्वजन गंवाए हैं, जो लोग अभी लापता है, जबरदस्त ट्रॉमा में जी रहे हैं, और जो इंजर्ड हुए हैं, वो सभी के प्रति मैं हृदय से मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपदा के इस समय में चाहे भारत सरकार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, समय है केरल की सरकार और केरल की जनता और विशेषकर वायनाड के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहने का। और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है, और मैं इस सदन के माध्यम से केरल की जनता और वायनाड की जनता से कहना चाहता हूं कि हर संभव मदद और हर संभव प्रयास